everyone. In the previous video we have read about the dimension formula. Today we will learn about the application of dimension formula. First, application of dimension formula, checking the correctness of the formula. That means how we will check the formula is correct or not. We will start with question. Check the correctness of the relation T is equal to 2 pi under root L by G, where L is the length, T is time period of the simple pendulum, G is gravitational acceleration. गिवन है सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G. अब हमें इस फॉर्मूले को चेक करना है दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली ट्रू और नॉट. ओके, इफ द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल, देन वी विल से दैट द फॉर्मूला इज डायमेंशनली ट्रू. ओके, हियर वी सी दैट द डायमेंशन ऑफ LHS is time period and the dimension formula of time period is T1. Okay, now the dimension of RHS, so we know that the 2 pi is a constant, so its dimension is m0 L0 T0. Now under root we will write the dimension of L. The dimension of L is L1 and the dimension of G is L1 T minus 2. We will cancel the L1 to L1 and T minus 2 raise power plus 2. So अंडर रूट ओवर टी स्क्वायर वी गेट T1. m0 L0 T0 कोई मीनिंग नहीं है इनका यहाँ पर, सिर्फ क्या हो जाएगा T1. सो वी सी दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ RHS. सो वी से दैट दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली ट्रू. Now the next question is check the dimensional consistency of the relation V is equal to 1 upon L under root P upon D, where L is length, P is pressure and D is density and V is velocity. Okay, first of all we will check the dimension of LHS and dimension of RHS. The dimension of LHS is velocity and we know that the dimension formula of velocity is given by L1 T minus 1. Okay, this is equation 1. Now the dimension of RHS is given by 1 upon L under root P by D. 1 upon L, dimension formula of L is L1. Dimension formula of pressure, we know that m1 L minus 1 T minus 2, and the dimension formula of D is m1 L minus 1 because the density is mass per unit volume. So dimension of mass is m1 and the volume is L3. वो ऊपर जाएगा तो L minus 3 हो जाएगा. ओके, होल ओवर अंडर रूट. सो 1 by L, अगर m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, L minus 3 ऊपर जाएगा तो L2 and T minus 2 as it is. Okay, now we solve the under root. तो 1 by L is L1 T minus 1, L1 से L1 कैंसिल, कितना आया T minus 1. This is equation 2. So from equation 1 and 2 we see that LHS is not equal to RHS. The dimension formula of LHS is L1 T minus 1 and the dimension formula of RHS is only T minus 1. So LHS is not equal to RHS. So this formula is dimensionally not true. Okay, so by using the dimension formula we will check the formula is correct or not. It is very useful. Now we will start the second application. Second application is derivation of formula. That means अगर हमें कोई भी physical quantities दे दी जाए तो उनको आपस में correlate करके हम किसी भी dimension किसी भी physical quantity का formula कैसे derive कर सकते हैं. Okay, so हम इसके लिए भी question से start करते हैं. The question is derive an expression for time period capital T. आपको फॉर्मूला निकालना है टाइम पीरियड कैपिटल टी का ऑफ अ सिंपल पेंडुलम के लिए विच में डिपेंड अपॉन द जो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है किस पे डिपेंड कर रहा है. मास ऑफ द बो दैट मीन स्मॉल m दिया है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम दैट मीन स्मॉल l गिवन है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट मीन स्मॉल g गिवन है. तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है किस के टर्म्स में, एक तो मास, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन के टर्म में आपको निकालना है. ठीक है, तो इसको लिखने का सबसे पहले तरीका ये है कि हमें जिसका भी फॉर्मूला डिराइव करना है उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके लिख देंगे उनकी टर्म्स में जिनके टर्म्स में हमें फॉर्मूला डिराइव करना है. ओके, सो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c. ऐसा हमने क्यों लिखा, हम मान लेते कि वो मास पे डिपेंड तो करता है पर हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे पावर कितनी आएगी, तो हमने कंसिडर कर लिया कि मास की पावर a पे डिपेंड करता है, ऐसे ही लेंथ की पावर b पे डिपेंड करता है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की पावर c पे डिपेंड करता है. ओके, और a b c क्या है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट है. ठीक है, जो भी पावर आएगी वो हम आगे सॉल्व करेंगे. ओके, अब हमें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम इक्वल लगाते हैं. हमने इक्वल लगा दिया और इक्वल लगाते हैं इक्वल के साथ कोई कांस्टेंट लगाते हैं. तो हमने यहाँ जो कांस्टेंट लगाया हुआ है वो ऐसा कांस्टेंट होना चाहिए जो इन क्वांटिटीज़ को अफेक्ट नहीं करे, अदरवाइज तो फिर फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा. तो यहाँ हम के जो मानते हैं वो क्या है, इट इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट. ओके, डायमेंशनलेस कांस्टेंट का मतलब उसके डायमेंशन हम क्या लिख सकते हैं, m0 L0 T0 लिख सकते हैं. ओके, तो हमने ये लिखने का तरीका है. नेक्स्ट अब हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं. हमें पता है टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला T1 होता है, हमने लिख दिया कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो m0 L0 T0 हो गया.
मास का डायमेंशन फॉर्मूला m1 होता है, बाहर a लगा दिया। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला l1 होता है, l1 लगा के बाहर b लगा दिया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला l1 t-2 होता है, बाहर c लगा दिया। ओके, अब हम इन कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। m जो है a जो है वो a से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो a जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो a हो जाएगा। b भी 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है, b हो गया। और c जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल, हम जानते हैं पावर्स एक्सपोनेंशियल पावर का, तो ये c हो जाएगा, तो ये भी -2c हो जाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं कि जो सेम वाली पावर है मल्टीप्लिकेशन में पावर एडअप होती है, तो यहाँ m0 है और यहाँ m है, यानी कि दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो दोनों 0 + a हो जाएगा। लेंथ यहाँ 0 है, यहाँ b है, तो ये भी 0 + b, और एक यहाँ c भी है, तो 0 + b + c हो जाएगा। टाइम यहाँ 0 है और यहाँ -2c है, तो 0 -2c आ जाएगा, क्योंकि यहाँ -2c है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 0 + a इज a, और नाउ दिस इज b + c एंड दिस इज -2c। ओके, अब हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, LHS को RHS से कंपेयर करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ ना मास का कोई कंपोनेंट है, ना ही लेंथ का कोई कंपोनेंट है, ओनली टाइम का कंपोनेंट है। तो मास का कंपोनेंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हम मास को 0 कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं, m⁴ कह सकते हैं। और जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर मास का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो a किससे कंपेयर होगा, 0 से कंपेयर होगा, क्योंकि हम मास⁴ 0 यहाँ लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ l का कोई कंपोनेंट नहीं है, लेकिन हम यहाँ l0 लिख सकते हैं। ठीक है, l0 लिख सकते हैं, तो b + c किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। यहाँ t⁻⁻2c है, तो -2c किससे कंपेयर होगा, t⁻1 से, क्योंकि यहाँ t का कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो -2c = 1 हो गया। अगर हम यहाँ से c की वैल्यू निकालें तो क्या मिल गई, -1/2, और इस c की वैल्यू -1/2 को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो अगर यहाँ रखेंगे तो ये इधर प्लस में आ जाएगा, तो b की वैल्यू हमें 1/2 मिल गई। ओके, तो हमारे लिए a की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है -1/2 और b की वैल्यू है 1/2। निकाल लिया हमने, जो कॉन्स्टेंट हम अज्यूम करके चले थे। इज इट क्लियर? नाउ इसको हम किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो t = k, m a पावर कितनी है, 0, तो a पावर 0 लगा दी। लेंथ है, b पावर कितनी है, 1/2, तो b पावर 1/2 लगा दी। g c पावर कितनी है, -1/2 लगा दी। अब यहाँ g -1/2 है, तो इसको नीचे लाएंगे तो +1/2 हो जाएगा, और हम दोनों को अंडर रूट लगा के ऐसे लिख सकते हैं, तो t = k √L/g। तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल चुका है। किन किन की टर्म्स है, मास पे तो ये इंडिपेंडेंट है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इस फॉर्मूले में मास नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी की पावर 0 का मीनिंग क्या होता है, 1। ओके, सो मास पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इस फॉर्मूले में मास नहीं आ रहा है। लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ की पावर हाफ पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन की पावर पर भी -½ पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। तो इस डेरिवेशन को यूज़ करके, फॉलो करके आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। Now the next application is conversion of one system of unit into another. That means एक system of unit अगर हमें MKS में given है तो दूसरे को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, CGS में, या वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं। ओके, तो इसका मेथड क्या है हमारे पास, सपोज m1 l1 t1 आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम। कोई भी एक सिस्टम आपके पास गिवन है, सपोज आपके पास MKS सिस्टम गिवन है, तो उसमें जो m1 l1 t1 है वो फंडामेंटल यूनिट्स है, गिवन है अपनी। ओके, now the m2 l2 t2 are the fundamental units of mass, length and time in other system। ठीक है, लाइक CGS सिस्टम है हमारे पास, तो उसमें m2 l2 t2 मान लिया हमने। ओके, a b c आर द रेस्पेक्टिव डायमेंशन, हमें नहीं बताना है पावर कितनी हो सकती है, तो हमने कांस्टेंट कोई भी मान लिया, a b c डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी इन मास, लेंथ एंड टाइम ऑन बोथ द सिस्टम। तो इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना है, n2 = n1 m1/m2 टू द पावर a, l1/l2 टू द पावर b, t1/t2 टू द पावर c। ओके, और वेयर n1 n2 क्या है, n1 n2 आपके पास है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे आपको सपोज करो 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, तो 10 क्या है, वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। तो अगर एक में हमें 10 न्यूटन गिवन है और उसको अपन को सपोज डाइन में कन्वर्ट करना है, तो 10 तो हमारे पास ये फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और हमें उसको डाइन में कन्वर्ट करना है, तो 10 न्यूटन का डाइन में कुछ और आएगा, तो वो क्या होगा, हमारी वैल्यू होगी n2, जिसको हम ये मेथड फॉलो करके कैलकुलेट करेंगे। अभी हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। ओके, 1 न्यूटन इंटू डाइन में कन्वर्ट करना है हमें, तो न्यूटन कौन सी यूनिट होती है, MKS यूनिट होती है, और डाइन कौन सी यूनिट होती है, CGS यूनिट होती है। ओके, तो न्यूटन को हमें डाइन में कन्वर्ट करना है। अगर हमें डायरेक्ट रिलेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार हमें डायरेक्ट रिलेशन याद नहीं होता, तो हम ये मेथड फॉलो करके रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो न्यूटन इज एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स ऑन MKS सिस्टम एंड द डाइन इन CGS सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो
यूनिट है वो है कौन सी, वो फोर्स है, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड होता है या मीटर पर सेकंड होता, तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की। तो हम यहाँ पर जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं वो किसका लिखते हैं, वेलोसिटी का लिखते हैं। ओके, यहाँ न्यूटन है तो हमने न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। अगर यहाँ जूल होता तो हम यहाँ किसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, जूल का। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स कितना होता है, m1 L1 T-2, पहले वाले वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं उसको। और यहाँ N1 जो है फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1 है, या कुछ भी हो सकता है। ओके, और फर्स्ट यूनिट हमारी किस में है, MKS में, और सेकंड यूनिट हमारी किस में है, CGS में है। ओके, अब और हमें फाइंड करना है N2, यानी कि डाइन में 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है वो हमें फाइंड करना है। तो हमने बोला था हमें फॉर्मूला याद है, N2 = N1 m1/m2 to the power a, L1/L2 to the power b, T1/T2 to the power c। ओके, सो N2 = N1 कितना हो जाएगा, 1। मास हमारा, अब देखो यहाँ m1 m2 की वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं। m1 कौन सा, m1 L1 T1 कौन सी यूनिट होती है, फर्स्ट वाली जो यूनिट है, यानी कि न्यूटन हो गया। और m2 L2 T2 कौन सी वाली यूनिट है, सेकंड वाली, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, मतलब वो क्या हो गया, डाइन हो गया। ओके, तो अब आपको बताइए m1 क्या है, मास है। अब मास को MKS यूनिट में किससे डिनोट करते हैं, किलोग्राम से। लेंथ को MKS यूनिट में किससे मेजर करते हैं, मीटर से। टाइम को किससे मेजर करते हैं, सेकंड से। ओके, आ गया समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड जो है वो क्या है, CGS है। ओके, डाइन इज द CGS यूनिट। ओके, तो मास किस में होता है, ग्राम में। लेंथ किस में होता है, सेंटीमीटर में। और टाइम किस में होता है, सेकंड में। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे जो ABC की वैल्यू है, ये ABC की वैल्यू वो है कि आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हो। तो हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं, फोर्स वाली फिजिकल क्वांटिटी है ना हमारी। तो यहाँ जो ये ABC हमने लिखा है ना, वो किससे कंपेयर होगी, M वाला M से कंपेयर होगा, L वाला L से, और T वाला T से। तो जैसे देखो A जो है वो 1 से हो गया, B भी 1 से हो गया, और C किससे हो गया, -2 से हो गया। इस तरीके से वैल्यूज़ रखनी होती है। तो A की वैल्यू हो गई 1, B की वैल्यू भी हो गई 1, C की वैल्यू हो गई -2। ओके, अब हमें क्या करना है, जो भी आपको सिंपल लगे आप किसी एक को कन्वर्ट कर दो। ओके, जैसे kg को ग्राम में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, तो मैंने किलोग्राम की जगह क्या लिख दिया, 1000 ग्राम लिख दिया, और नीचे ग्राम भी रहना। दोनों को कन्वर्ट नहीं करना है, किसी एक को कन्वर्ट करना है। पावर 1 है ही सही। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर है ही सही। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचा, 1 to the power -2, जो कि मीनिंगलेस है, कोई वो 1 ही रहेगा। ओके, और 1000 की पावर 1 हो गई, और 100 की पावर 1 हो, वो 100 ही आएगा। ठीक है, 1 × 1000 × 100, तो कितना हो गया, 10 to the power कितनी बन गई, 5। यानी कि हमारा N2 क्या निकला, 10 to the power 5 डाइन। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 to the power 5 डाइन होते हैं। हमें ये N2 पता चल गया। ठीक है, तो ये मेथड फॉलो करके आप किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये अपन ईजिली फाइंड कर सकते हैं।